Everyone, in this new normal situation, how are you doing? You must be using this time as an opportunity for improving your performance, isn't it? Well, today in this webinar, I'll explain you 3 points. One, how the preparation of biology is different from physics and chemistry. Second, what should be the pattern of studying biology? Third, how can you improve your score? I'll be taking 3 points. I'm Dr. R. C. Narang. I've been guiding this all AI, PMT, and ET students from last more than 32 years. I've taught BSc and MSc classes in a postgraduate college for 40 years. I have also authored the book ACE Biology and have been associated with Disha for more than 15 years, right? So we'll start now. I'll start from the beginning. I was telling that there are 3 steps to improve biology. First is preparation study, how you have to prepare biology. Second, what are the important concepts? Here I'll take 2 types of concepts. One, from which the maximum questions are covered, and second, from which the difficult questions are taken, right? Third, then we will discuss how we can improve speed and score in biology, right? So first we'll take preparation strategy in biology. Is it visible now? Slide. Is my PPT visible now? Yes, uncle. Yes. Okay. It is visible. Please go ahead. Everything is all right. Yeah. So there is preparation strategy. I've mentioned 10 steps. I'll discuss one by one. I won't read the head only. I'll just explain what are the important terms, what are technical terms, how comparative tables are to be drawn, how flow chart, everything. So be attentive and listen to each and every word what I speak. First, in bold type word in NCERT which are mentioned, and the name. Name can be of the scientist, like in recombinant DNA, name are important. In DNA fingerprinting, names are important. In other so many processes, you know, there are names important of scientists. But I'm talking about the name of animals also. They are very important. I remember there were questions in 2 consecutive years on silverfish. Silverfish belongs to which phylum? That is very simple question. And I know some of the students made it wrong. Silverfish is a arthropod. That's an insect which does not undergo metamorphosis. Lepisma we call it. Technical name is Lepisma, silverfish. So that belongs to arthropoda. And 2 consecutive years the same question was asked. Flying fish, common name. True worms. Now, instead of remembering so many names and then this is false, this is true, it's very difficult to retain so many names. Best way is you remember only the true worms. No need to remember the false worm. True worms, hardly 4, which you have to remember. Hardly 4. One is roundworm, Ascaris. Second is pinworm, Oxyuris. Third is hookworm, Ancylostoma. And fourth is filaria worm that causes elephantiasis. The 4 worms. Besides these 4, if there is any name like earthworm, is false. Second, glowworm, false. Shipworm, false. Tongueworm, there's a name in Hemichordata, Balanoglossus, false. Tapeworm belongs to platyhelminths, false. So all these names, flatworms, they're false. So remember only 4 names which are true worms, rest other are false. Now why these are 4 true worms? The reason is they have pseudocoelom. So all member of Aschelminthes or all member of Nematoda which have pseudocoelom, जिनमें false coelom है, they are only called true worms. All other names to which phylum they belong doesn't matter. They all are false worm.
right? Similarly, if you take characteristic of different phylum, for example, choanocyte, you have seen questions are there in NEET from choanocyte. Choanocyte are flagellated cells. They are present in Porifers. There's a characteristic feature of Porifers. Similarly, in Cnidaria, the cells are nematoblast, nidoblast we call it. Third, you go in platyhelminths, characteristic cells are flame cells. So when you learn choanocyte, you write with that. That is what I mentioned in cross-linking. So with that choanocyte, you mention nidoblast or nidocyte. Third, with that you write flame cells, and then write the function of each and every cell. That way you have to remember. Otherwise, it will be very difficult to recall whether it's a true worm or is a false worm, is a fish, true fish. For example, flying fish, that is true fish. A starfish is not a true fish. That's an echinoderm. Jellyfish is not a fish. That is a cnidarian. So that way you have to remember. Second point, we take Uncle, technical terms. In technical terms, again, cross-linking is important. Uncle, we Hello? still slide one. So are you talking about slide one, or have you forgotten to change the slides? No, no. Have you missed out changing the slide? This is one Slide preparation change करना strategy in आपने हाँ, preparation उसी की strategy in बात biology. Hello? Is this slide not visible? Preparation strategy in biology? हाँ बस ठीक है वो थोड़ा हम कंफ्यूज हो गए थे हम नॉन टेक्निकल Okay. So then I come to tech. I'll go a little faster. In technical terms, suppose there are certain terms which are very confusing and closely related that you have to write together. Only then you can remember it. Otherwise, you'll get confused. For example, I'll give you certain examples. There is a term metamerism. Another term is metagenesis. Third term is metastasis. If all three are given in the choice, you'll be confused. It's difficult to recall to which chapter one particular term belongs. Metamerism is metameric segmentation. And that you very well know. Metameric segmentation present only in 3 phylum in the animal kingdom. Only 3 phylum. That is Annelida, Arthropoda, and Chordata. Mollusks are not metamerically segmented. So metamerism is the phenomenon of metameric segmentation. Second term I have used with that, metagenesis. Meta means change, as you learn in metamorphosis. So meta means change, morpho means morphology, metamorphosis. Similarly, this metagenesis. Meta means change, genesis means generation. When one generation changes into another. That you study in Cnidaria, Obelia. And there is metagenesis. Metagenesis means when polyp stage changes into medusa, medusa changes into polyp. That is metagenesis. Third, I have said metastasis. Anyone of you know what is metastasis? Metastasis is a term used in cancer. Very close to these terms. That's used in cancer. When cancer cells through the blood or the lymph, they move to the other organs and they start producing secondary tumors. So that's a dangerous stage in when metastasis set in. Then radiotherapy and all sort of chemotherapy, they are required. So metastasis used in cancer, metagenesis is used in Obelia, metamerism is used in 3 phylum, Annelida, Arthropoda, and Chordata. Right? Similarly, I take another term. Centrosome, centriole, centromere. Centromere is present in chromosome. Centriole is the part of centrosome. In cell division, you use it. Or in sperm formation, you use proximal centriole, distal centriole. In centromere, where the spindle fibers are attached. There is a kinetochore on the top of it, and the spindle fibers are attached to the centromere. That is centromere part. That's present in the chromosome.
And there was question last year in, 2019, in some metacentric chromosome. What is the name of a smaller arm? What's the name of bigger arm? Smaller arm जो है उसको बोलते हैं, small p से denote करते हैं. P French word है, that means petite, P-A-T-I-T, petite. That means very small amount, चुटकी भर amount. आप वो डायलॉग सुना होगा आपने, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू. So that small amount, चुटकी भर amount जो है, एक pinch of that, we use petite in French. So petite is used for smaller. So in chromosome, a smaller amount means a smaller arm is, that is P arm, and the other arm is Q arm. So P and Q we use for short and longer arm. In metacentric chromosome, the two are similar. P and Q, they are equal. In acrocentric, P is very, very small as compared to Q arm. So those terms are very important. So in centromere, when you study centromere, you should know the name, this P and Q arms, right? Similarly, there's another term I'm using. Again, I'm connecting with the other term, satellite chromosomes and satellite DNA. Have you read satellite DNA? पढ़ा है आपने? Satellite DNA आपने पढ़ा है DNA fingerprinting में. Mini satellite DNA जो DNA fingerprinting में use करते हैं, mini satellite. But what is this satellite chromosome? Satellite DNA is different. Satellite chromosome is different. So if you write the two things separately, you'll get confused. You have to write two things together so that there is no confusion at all. So in that case, the satellite chromosome is the one which produces nucleolus. We call it nucleolus organizing region. That is satellite chromosome. There are only 5 chromosomes in human body. 13, 14, 15, 21, 22, which are satellite chromosome. They are satellite chromosome, remember. I'm not talking about satellite DNA, right? Similarly, I take another topic from animal husbandry. There is term outbreeding, outcrossing, crossbreeding. Very confusing. Hardly there is 1 or 2 questions from animal husbandry, but that is very common question, outbreeding and outcrossing. The two are different. Outbreeding includes outcrossing, crossbreeding, interspecific hybridization. So these 3 terms, they are included in outbreeding. One is inbreeding, that you very well know. So outbreeding includes these 3. So in outcrossing, they are of the same breed. In crossbreeding, they are of the different breed. In interspecific hybridization, like mule production, they are different species. So that complete together, all 3, we use the term outbreeding. Very confusing with outcrossing and crossbreeding, right? Similarly, there are certain other terms. I'll go fast. One is restriction enzyme. Very, very important term. Can't forget it. Can't afford to forget it. Then there's a term nucleosome, having that histones. There is a term molecular Caesar. Very, very important term, molecular Caesar, which cut the DNA at different places. So all these terms, even palindrome is very important, palindrome term. So those who are appearing in 2020, they should know this term very clearly. Palindrome, there's a sequence which reads the same 5 to 3 prime or 3 to 3 prime to 5 prime. That reads the same. That is palindrome. Third point, I come to comparative table. Now in comparative table, जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं आप, उसे आप समझने की कोशिश कीजिए, फिर आपसे गलती नहीं होगी. आपको कोई भी 2 चीज़ों को आप कंपेयर कर रहे हैं, मान लीजिए पॉलीपर मेडुसा को कंपेयर कर रहे हैं, आपको ये याद रहता है कि एक डायग्राम राइट साइड में बना था, वो ट्यूबुलर था, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो ट्यूबुलर डायग्राम किसका था, मेडुसा का था या पॉलिप का था. तो आप एक रूल बना लीजिए, जब कभी आप बायोलॉजी पढ़ें, किसी भी टेबल को आप लर्न करना है आपको, तो पहले टेबल को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखिए, लेफ्ट टू राइट. अगर आपको पता है कि आपने पॉलिप और मेडुसा का कंपैरिजन लिखना है, तो मेडुसा को आप लेफ्ट में लिखिए, एम से शुरू होता है, पॉलिप को पी से राइट में लिखिए आप. अब अगर आपको याद है कि वो राइट साइड में लिखा हुआ था पॉइंट,
तो आप ये कभी नहीं भूलेंगे कि वो राइट साइड में है तो इसका मतलब वो मेडुसा का नहीं हो सकता पॉइंट, वो पॉइंट जो है वो पॉलिप का होगा। आप कभी कंपैरेटिव टेबल में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, आपको हमेशा याद रहेगा कि वो करेक्टर जो है या वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो बना रखा था मैंने राइट साइड में, वो पॉलिप को बिलोंग करता है। अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर लेफ्ट साइड में था, वो उसको बिलोंग करता है। ऐसे ही कभी आप मान लीजिए कंपेयर करें स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis को, तो पहले आप oogenesis लिख लीजिए लेफ्ट साइड में, राइट साइड में स्पर्मेटोजेनेसिस लिखिए। आपको ध्यान रहेगा कि जहां आपने एक ही ooted दिखा रखा है या एक ही गैमीट फंक्शनल गैमीट है, वो oogenesis का होगा, लेफ्ट साइड में होगा वो डायग्राम। और स्पर्मेटोजेनेसिस का जहाँ 4 स्पर्मेटेड दिखा रखे हैं या 4 जो है वो गैमीट दिखा रखे हैं, राइट साइड में होगा डायग्राम। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, रिकॉल करने में कोई परेशानी नहीं होगी आपको। ये चीजें कुछ आपको लर्न करनी है, जिससे कि आपको लर्निंग क्या है, फन हो जाएगा आपके लिए और बहुत अच्छे से आप याद कर पाएंगे। ठीक है, तो टेबल बनाने में आप हमेशा ध्यान रखिए, जो भी टेबल, किसी भी चीज की आप टेबल बनाते हैं, एक और पॉइंट है जिसपे क्रोमोसोम पे क्वेश्चन आया हुआ है, मैं वो आपसे शेयर करूंगा। टेबल बनाने में पॉलीटीन क्रोमोसोम और लैम्ब्रश क्रोमोसोम 2 बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, और मुझे लगता है ज्यादातर बच्चे गलत कर जाते हैं। लैम्ब्रश क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम दोनों जॉइंट क्रोमोसोम। डिफरेंस क्या है? पॉलीटीन क्रोमोसोम में मल्टीपल स्ट्रैंड्स होते हैं, लैम्ब्रश क्रोमोसोम में डीएनए अनवाइंडिंग हो जाता है और उसकी अपीयरेंस जो है वो लैम्ब्रश की होती है। लैम्ब्रश ऊ साइट में होता है, पॉलीटीन क्रोमोसोम जो है वो सैलिवरी ग्लैंड्स में होते हैं इंसेक्ट्स की, चाहे वो कॉकरोच हो, चाहे ड्रोसोफिला हो या दूसरा हो, उनके सैलिवरी ग्लैंड्स में पॉलीटीन क्रोमोसोम होते हैं। जो अभी शायद 2018 में क्वेश्चन आया था, उसमें यही था पॉलीटीन क्रोमोसोम, उसमें पूछा हुआ था किस में होता है, तो पॉलीटीन क्रोमोसोम जो चॉइस में दिया हुआ था वो ऊ साइट में दिया हुआ था, प्राइमरी ऊ साइट में। दैट वाज इनकरेक्ट, और वही पूछा था उसमें इनकरेक्ट क्या है। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम और लैम्ब्रश क्रोमोसोम में बहुत फर्क है दोनों में। एक और देखिए डिफरेंस, जो जहाँ कंपैरेटिव आप करेंगे, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, अल्फाबेटिकली अरेंज कर लीजिए। डायग्राम आपको याद रहेगा, तीनों का डायग्राम आपने बनाया होगा, और बहुत सिंपल से सिंपल आप पॉइंट लिखिए। कंपैरेटिव टेबल में कभी आप बहुत सारे पॉइंट मत ऐड कीजिए, जो पॉइंट आपको आते हैं मत लिखिए उसमें, जो आपको नहीं आते उनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ उनको ऐड कीजिए, और वो भी शॉर्ट में बिल्कुल, जैसे आप एसएमएस की लैंग्वेज में लिखते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा अकाउंट लगेगा, लर्न करने में आसानी होगी, रिटेन करने में आसानी होगी। होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन है, कंपेयर करेंगे आसानी से आप लर्न कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सा होमोलोगस है कौन सा एनालोगस है। डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो कंपैरेटिव में आप ध्यान रखिए कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट में लेता हूँ फ्लो चार्ट में, मैं बहुत अब थोड़ा सा फास्ट हो जाऊंगा। फ्लो चार्ट में, फ्लो चार्ट बनाने के लिए जितने भी प्रोसेस हैं, चाहे वो हार्मोन के, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के, पीसीआर के स्टेप्स हैं, उन सब प्रोसेसेस को आप फ्लो चार्ट में बना लीजिए और उससे आप लर्न कीजिए। डिस्क्रिप्टिव मत लिखिए आप पेजेस पे, बड़ा बड़ा अकाउंट आप लिख लेते हैं, A4 पेज ले लेंगे और उस पर इतना सारा अकाउंट लिख देंगे, नहीं आप लर्न कर सकते। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उस सब की जरूरत नहीं है जो आप लिख रहे हैं, वो सब्जेक्टिव में होती है। सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है आपका, आपका ऑब्जेक्टिव है, आपको उसके हिसाब से लर्न करना है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट बनाते हुए आप ध्यान रखिए, आपको सिर्फ पॉइंट्स में नोट करनी है चीजें। वैल्यू फार्मूले में बहुत सारी चीजें हैं जिनके वैल्यू पूछ ली जाती है। ब्लड प्रेशर की वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू। शुगर की अमाउंट कितनी होती है, नॉर्मल। यूरिया की अमाउंट ब्लड में कितनी है, यूरिन में कितनी है। कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट कितनी होती है। यू आर सपोज टू नो ऑल दीज वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। रिब्स में, रिब्स मान लीजिए डिफरेंट टाइप की आप लें, ट्रू रिब्स हैं, फॉल्स रिब हैं, फ्लोटिंग रिब्स हैं, कितना नंबर होता है, दैट्स ए स्टैंडर्ड वैल्यू, वो आपको लर्न करनी है। स्कल में कितनी बोन्स हैं, क्रेनियम में कितनी बोन्स हैं, दैट यू हैव टू रिमेंबर। डेंटल फार्मूला है, फार्मूले आपको याद करने हैं। एरिया रिलेशनशिप का फार्मूला है S = CA raised to the power Z, याद करना है आपको। ग्रोथ कर्व के फार्मूले हैं, चाहे वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है या दूसरा है लॉजिस्टिक है, दोनों के फार्मूले आपको याद करने हैं। वो सब एक साथ आप करेंगे, क्रॉस लिंक करेंगे चीजों को, तब आप रिटेन कर पाएंगे। फनी पिक्चर्स, फनी पिक्चर्स की मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बच्चों को लगता है कि क्या फनी पिक्चर्स बनाई जाएंगी, जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है तब आप फनी पिक्चर बनाते हैं। बिना फनी पिक्चर के आप उसे याद नहीं कर सकते, और जिस चीज को आपको याद करना है उसे आउट ऑफ प्रोपोर्शन दिखाइए आप, तभी आप याद कर पाएंगे। अगर आप उसे नॉर्मल प्रोपोर्शन में दिखाएंगे आपको याद नहीं रहेगा वो पिक्चर में आपने वो ड्रॉ किया हुआ था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जहाँ इंफॉर्मेशन बहुत सारी है। सपोज ज्यूरेसिक पीरियड के आप दिखा रहे हैं,
उसमें कौन से एनिमल फर्स्ट टाइम इवॉल्व हुए थे, किसके लिए गोल्डन एज है। डायनासोर्स की आपको पता है, गोल्डन एज है डायनासोर की, जुरासिक पीरियड, जुरासिक पार्क उसी पे बनी थी पिक्चर। आपने 2-3 डायनासोर बना लिए, सिंगल लाइन डायग्राम बनाइए, कोई कॉम्प्लिकेटेड आपको ड्राइंग बहुत अच्छी बनाने की जरूरत नहीं है लर्न करने के लिए। सिंगल लाइन टायरानोसोरस बना रहे हैं आप, ब्रोंटोसोरस बना रहे हैं, ब्रेकियोसोरस बना रहे हैं, आपने बना लिया एनिमल। उसके साथ साथ आपको पता है कि वो जिम्नोस्पर्म की गोल्डन एज है। एक साइकस की लीफ बना दीजिए, एक कोन बना दीजिए पाइनस का उसी पर। उसके साथ तीसरा बर्ड फर्स्ट टाइम अपियर हुई थी जुरासिक पीरियड में, इसको कैसे याद करेंगे। तो फर्स्ट टाइम जो बर्ड आई थी वो कौन सी थी, वो थी आर्कियोप्टेरिक्स। मॉडर्न वर्ल्ड में कोई भी वर्ड इस प्लेनेट पे, इस वर्ल्ड में ऐसी नहीं है जिसमें टीथ होते हो। आर्कियोप्टेरिक्स में टीथ थे, उसको यूज कीजिए आप फीचर को। एक बीक बनाइए, उसमें बड़े बड़े टीथ दिखा दीजिए, यू विल नेवर फॉरगेट कि आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक पीरियड में आई थी। वो डायग्राम आपको याद रहेगा। उसके लिए आपको आर्कियोप्टेरिक्स की फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसकी फिगर बनाएंगे बीक की, और बीक में भी टीथ इतने बड़े दिखाएंगे कि आप भूल ही नहीं सकते कि आप उसमें आर्कियोप्टेरिक्स बनाई हुई है। दैट इज द वे। ऐसे फनी पिक्चर बनाए। निमोनिक्स आप बहुत जानते हैं, निमोनिक्स के बारे में जो टर्म आप लेते हैं, लेकिन निमोनिक्स में भी कुछ लोग सॉन्ग्स बना लेते हैं, हर एक के उसके लिए सॉन्ग भूल जाएंगे बाद में, मुखड़ा था या उसका स्टैंजा था, उसका कौन से शुरू करना है उस सॉन्ग को। फिर बहुत सारे सॉन्ग बना लेंगे, फिर उनको याद करने के लिए फिर अलग से एक सॉन्ग बना लेंगे, फिर ये भूल जाएंगे कौन सा सॉन्ग किस पर्टिकुलर उसके लिए था, सीक्वेंस के लिए। डोंट डू दैट। निमोनिक्स में बहुत सिंपल निमोनिक्स बनाइए, मैं एक तो यूज करूंगा अभी बाद में। उसके बाद डायग्राम देखिए। डायग्राम कोई आपको बनाने की जरूरत नहीं है, कोई डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करिए, आप सब्जेक्टिव एग्जाम में अपियर नहीं हो रहे, राइट। आप डायग्राम में सिर्फ लेबलिंग स्टडी करेंगे, क्योंकि एग्जाम में, नीट में जितने भी एग्जाम में डायग्राम आएंगे वो एनसीईआरटी बुक से आएंगे, कोई भी एनसीईआरटी के बाहर डायग्राम नहीं आएगा। तो किसी डायग्राम को प्रैक्टिस आप कर रहे हैं किसी और बुक से तो भूल ही जाइए, आप एनसीईआरटी से भी प्रैक्टिस मत कीजिए। आप सिर्फ उसकी लेबलिंग को माइन्यूटली देखिए। अगर भूल गए हैं तो एक कागज पे अलग से दोबारा डायग्राम को रफ बनाइए, बिल्कुल जितना रफ बना सकते हैं, और उस पर आप लेबलिंग दोबारा से कर लीजिए। अगर आपको लगे एक बार लेबलिंग ठीक हो गई, फॉरगेट, आप रिटेन कर पाएंगे उसे। रिवीजन एक और पॉइंट है। रिवीजन में कैसे करना है, रिवाइज करने के लिए क्या आपको करना पड़ेगा। रिवीजन के लिए भी फर्स्ट रिवीजन बहुत ज़रूरी है कि वो विद इन 24 आवर्स के हो जाए। बायोलॉजी में क्योंकि 70-80% क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड होते हैं, समटाइम्स मोर देन 80% क्वेश्चन आर मेमोरी बेस्ड। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। आप बायोलॉजी में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि आप भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप पढ़ते नहीं है बायोलॉजी, मुझे पता आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं और उसको रिवाइज नहीं करते। तो फर्स्ट रिवीजन जो भी आप नई इंफॉर्मेशन लें विद इन 24 आवर्स, फिर उसके बाद एक वीक में रिवाइज कर लें, फिर 1 मंथ में कर लें, फिर जब आपको टाइम मिले आप करते रहिए। क्योंकि अगर फर्स्ट वीक उसमें 24 आवर्स में आप रिवाइज नहीं करेंगे, 70-80% मैटर यू विल लूज। आपको याद ही नहीं रहेगा वो कंटेंट, उसको रिकॉल करने के लिए आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। तो व्हाई नॉट रिवाइज इन 24 आवर्स वंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन है। तो वो रिवीजन भी आपको समझना है कि कैसे करना है। उसके बाद लास्ट में आप AIPMT और नीट के क्वेश्चन करते हैं। ये मैं पूरा स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ आपको बायोलॉजी को कैसे प्रिपेयर करना है। नीट के क्वेश्चन करने के या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप कर रहे हैं, ना तो आप क्वेश्चन को लर्न करेंगे, क्रैम करेंगे, ना उसके ऑप्शन को क्रैम करेंगे। मेक इट अ पॉइंट, मैं रिपीट कर रहा हूँ पॉइंट को, ना आप क्वेश्चन को लर्न करेंगे ना उसके आंसर को लर्न करेंगे। एग्जामिनर्स आपसे ज्यादा स्मार्ट है, पेपर सेटर आपसे ज्यादा स्मार्ट है, वो वही क्वेश्चन देंगे और आंसर जो आप प्रिज्यूम कर रहे होंगे, जो आंसर आपको लगेगा जो आपने पहले टेस्ट पेपर करे हुए हैं उनमें जो आंसर था, आपको वहीं कहीं वो सेटल हो जाएगा आपके ब्रेन में, आप उसे वही टिक करेंगे। उन्हें पता है कि आप ये आंसर टिक कर सकते हैं, वो क्वेश्चन ट्विस्ट कर देते हैं। और अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जहां पे ट्विस्टिंग होती है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। हिरोडिन सपोज है, हिरोडिन एंटीकोगुलेंट। हिरोडिन पे क्वेश्चन आया कि वो अर्थ फॉर्म के ब्लड प्रेजेंट होता है। दूसरा लिखा हुआ लीच के ब्लड में होता है, आपको पता है वो लीच में होता है, हिरोडिन एरिया में, आप टिक कर देंगे, एग्जामिनर को पता है। लेकिन उसने लिखा हुआ ब्लड में, ब्लड में नहीं होता लीच के, सलाइवा में होता। आप ध्यान ही नहीं देते उस पर, आपने लीच देखा और टिक कर दिया, क्योंकि पहले क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे।
जहाँ हीरोडिन पूछा हुआ है। और देखिए एक तरीका, मान लीजिए हिपेरिन पूछा जाए, हेलो। हाँ सर, हाँ जी हाँ, ओके ओके ओके। सर। सो आपकी पीपीटी बंद हो गई है सर, पीपीटी दोबारा शेयर कर दीजिए पीपीटी। ओके, दिस इज द प्रॉब्लम, हाउ टू शेयर पीपीटी। सर आपकी विंडो नीचे आ रहा होगा शेयर स्क्रीन का ऑप्शन। नहीं आता रहा, शेयर हो रही है, देखिए। हाँ सर हो गई है, आपको फुल स्क्रीन कर दीजिए इसको। हाँ मैं कर रहा हूँ फिर उसके। हाँ हाँ जी, तो एक लास्ट पॉइंट में इसमें और एक लेना चाहूंगा। AIPMT और नीट में क्वेश्चन में मान लीजिए हिपेरिन पे आ जाता है, हिपेरिन इज ए प्रोटीन विच प्रमोट्स ब्लड क्लॉटिंग। दूसरा आ जाता है हिपेरिन इज ए प्रोटीन विच इनहिबिट्स ब्लड क्लॉटिंग और प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। तो कौन सा आंसर ठीक है? आपको लगेगा कि शायद ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है हिपेरिन। दोनों आंसर गलत है। हिपेरिन जो है वो प्रोटीन है ही नहीं, हिपेरिन शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है। क्वेश्चन की फ्रेमिंग ही गलत है। तो इस टाइप के आंसर आप बिल्कुल लर्न ना करें, ठीक है। नेक्स्ट मैं आता हूँ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और क्वेश्चंस पे, ठीक है। ये पार्ट आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैंने इसमें सिर्फ 4 ही टॉपिक लिए हैं, इनफैक्ट 3 ही टॉपिक लिए हैं। ब्लड ग्रुप, हार्डी-वीनबर्ग लॉ ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इम्यूनिटी। लेट्स स्टार्ट विद द ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप मैंने इसलिए लिया कि मैक्सिमम क्वेश्चन ब्लड ग्रुप पे आए हुए हैं, और इम्यूनिटी भी इसलिए लिया है कि उस पर भी मैक्सिमम क्वेश्चन इम्यूनिटी पे है। इवन एक पर्टिकुलर ईयर में 16 शायद मैं देख रहा था पेपर, उसमें 3 क्वेश्चन है एक ही उसमें। हार्डी वीनबर्ग का जो है पॉपुलेशन जेनेटिक्स का, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इंक्लूड किया उसमें। तो जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे आपको लर्न करना है, राइट। ब्लड ग्रुप में शुरू करते हैं। ब्लड ग्रुप में 2 टाइप के ब्लड ग्रुप हैं। मैं थोड़ा सा और फास्ट हो रहा हूँ अब। ब्लड ग्रुप 2 टाइप के होते हैं, AB और RH। उससे पहले आपको एक चीज समझनी है, कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में क्या फर्क होता है। फंडामेंटल पॉइंट है, कंसेप्चुअल पॉइंट है। कंप्लीट डोमिनेंस आपने पढ़ा है पाइसम सटाइवम में, पी प्लांट में। उसमें टी और स्मॉल टी जब आप यूज करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में कैपिटल T स्मॉल t आता है, दोनों में से एक पेरेंट का जो भी डोमिनेंट है उसका करेक्टर आ जाता है। वन ऑफ द 2 पेरेंट, उसे हम कंप्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस उसे बोलते हैं कि करेक्टर जो है वो दोनों पेरेंट के बीच में आ जाए। मीन्स एक का अगर रेड फ्लावर है, दूसरे का वाइट फ्लावर है, बीच में जो है, जैसे आप उसमें स्नैपड्रैगन में पढ़ते हैं, उसमें जो है वो पिंक फ्लावर आ जाए, दैट्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ना रेड आया है ना वाइट आया है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। थर्ड केस लेते हैं हम को डोमिनेंस, जहां पे दोनों के कैरेक्टर आ जाए, दोनों पेरेंट के। ऐसा ब्लड ग्रुप में होता है। अगर एक का एंटीजन ए है, दूसरे का एंटीजन बी है, आरबीसी पे पता लगा चाइल्ड में जो है ए और बी दोनों एंटीजन आ गए, उसके आरबीसी पे दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, दिस इज कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस ब्लड ग्रुप में होता है, एंड दैट्स वेरी पिकुलियर पॉइंट। तो 2 टाइप के ब्लड ग्रुप हैं, AB और RH। मैं थोड़ा जल्दी से लूंगा। AB और ब्लड ग्रुप में 4 फिनोटाइप होते हैं, ABO एंड AB। ब्लड ग्रुप O सबसे ज्यादा होता है। ज्यादातर नोमैड्स जो लोग होते हैं, बंजारे होते हैं, उनमें O ब्लड ग्रुप मिलता है। और सबसे पुराना एंशियंट और जो ये है ब्लड ग्रुप, वो O है।
सबसे ज्यादा O होता है। इंडिया में सबसे कम जो ब्लड ग्रुप है वो AB है 6.5% पॉपुलेशन में। 3 एलील जो हैं वो गवर्न करते हैं इस ब्लड ग्रुप को, ABO ब्लड ग्रुप को। ध्यान रखिए जनरली आप 2 ही एलील पढ़ते हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। यहाँ पे 3 एलील हैं, एक डोमिनेंट है A, दूसरा B, ये भी डोमिनेंट है, इसलिए ऊपर हमने टर्म यूज किया कोडोमिनेंस। ठीक है, दूसरा है, तीसरा O है, ये भी एक एलील है, ये रिसेसिव एलील है। ये O A के साथ आएगा तो स्मॉल a की तरह से यूज होगा, B के साथ आएगा स्मॉल b की तरह से यूज होगा। ठीक है, मैं इसमें और थोड़ा सा वो कर देता हूँ क्लियर जिससे हो जाए। चलिए नहीं, उसमें टाइम लगेगा। हाँ जी, तो अब देखिए उसमें 3 टाइप के एलील हो गए। इसका मतलब ये केस मल्टीपल एलील का है। ABO ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलील का है। आप क्वेश्चंस में देखेंगे, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये पॉलीजेनिक नहीं है। पॉलीजेनिक होता है जिसमें मल्टीपल जीन से हो, जैसे स्किन का कलर है, आई का कलर है, हेयर का कलर है, वो मल्टीपल जीन से है, दे आर पॉलीजेनिक ट्रेट। लेकिन ब्लड ग्रुप जो है मल्टीपल एलील ट्रेट है, नॉट। लेकिन 2 से ज्यादा एलील पॉपुलेशन उसमें हो नहीं सकते इंडिविजुअल में, 2 ही तो क्रोमोसोम होते हैं होमोलोगस, और यहाँ पे 3 एलील दिखा रखे हैं, लेकिन वो पॉपुलेशन में मिल सकते हैं। किसी एक इंडिविजुअल में AO कंडीशन है, दूसरे में BO, ऐसा हो सकता है। तीसरा, ये एलील या ये जीन जो है वो 9th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। जीनोटाइप 6 टाइप के होते हैं। ब्लड ग्रुप A में 2 तरह का हो सकता है, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। ब्लड ग्रुप B होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। लेकिन O और AB जो हैं वो सिर्फ एक ही टाइप के हो सकते हैं। टोटल 6 टाइप के जीनोटाइप। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है ऑलरेडी। उसके बाद लेते हैं एंटीजन एंटीबॉडीज। एंटीजन 2 टाइप के होते हैं, A एंड B, और दोनों RBC पे प्रेजेंट होते हैं। ब्लड ग्रुप का नाम हमेशा एंटीजन के नाम पे होता है। अगर आपका किसी का मान लिया ब्लड ग्रुप A है, इसका मतलब उसके RBC पे, जितनी भी RBC बॉडी में है, सबके सरफेस पे A एंटीजन प्रेजेंट है, तभी उसका ब्लड ग्रुप A होगा। किसी का ब्लड ग्रुप B है, इसका मतलब उसमें B एंटीजन प्रेजेंट है। किसी का ब्लड ग्रुप O है, इसका मतलब कोई एंटीजन ही नहीं है, उसकी किसी RBC पे कोई एंटीजन नहीं है। ऐसे ही एंटीबॉडीज की बात करें, एंटीबॉडीज भी 2 टाइप की होती हैं, अल्फा और बीटा। जो एंटी A है उसे अल्फा बोलते हैं, जो एंटी B है उसे बीटा बोलते हैं। एंटीबॉडीज अगर केमिकल नेचर के हिसाब से देखें तो प्रोटीन होती हैं, प्योर प्रोटीन, गामा ग्लोबुलिन। और जो एंटीजन होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ठीक है, उनमें शुगर डिफरेंट होती है, प्रोटीन सेम होती है, इसलिए आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से एग्लूटिनोजन लिखते हैं। एग्लूटिनोजन नाम इसलिए कि उससे एग्लूटिनेशन होता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इनहेरिटेंस में। इनहेरिटेंस में देखिए, प्रैक्टिस आप करेंगे इसकी। पेरेंट्स के आप डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप लिखिए और उसके बाद चिल्ड्रन के ब्लड ग्रुप दिखाइए। मुझे याद है मेरे पास एक टीचर आए थे कॉलेज में, और वो कहते हैं साहब मेरे खुद का ब्लड ग्रुप A है और मेरी मिसिस का ब्लड ग्रुप B है, लेकिन मेरी ड्यूटर जो है उसका ब्लड ग्रुप O है, तो आपको लगता है वो ड्यूटर मेरी है? आई वाज सो सरप्राइज्ड, लिटिल नॉलेज इज सो डेंजरस। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ बिल्कुल आप ही की है वो बेटी। अगर ब्लड ग्रुप A है अगर एक पेरेंट का, तो AO होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा। B है, BO होगा, वो हेट्रोजाइगस में होगा। चाइल्ड का कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, O भी हो सकता है, AB भी हो सकता है। इस टाइप की प्रैक्टिस आप करेंगे, फिर आप एग्जाम में टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आपकी किसी भी क्वेश्चन में जब आप बायोलॉजी अटेम्प्ट कर रहे हो 30-35 सेकेंड से ज़्यादा लगे। टोटल बायोलॉजी का पेपर 45 मिनट में हो सकता है अगर आपने बहुत अच्छे से किया हुआ तैयारी। 90 क्वेश्चन है 45 मिनट में, 30 सेकंड में एक क्वेश्चन कर रहे हैं, हाफ ए मिनट में, एंड दिस इज पॉसिबल। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में देखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में एक पॉइंट है आपको जो याद करना है, बस, बाकी कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है। एंटीजन ऑफ डोनर रिएक्ट्स विद एंटीबॉडी ऑफ रिसिपिएंट। इसको आप बिल्कुल रट लीजिए इस पॉइंट को। कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप पढ़ रहे होंगे तो डोनर का एंटीजन रिसिपिएंट की एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, इसका ऑपोजिट ठीक नहीं है। तो एंटीजन डोनर का रिसिपिएंट की एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है। इसका मतलब अगर हम डोनर ऐसा कोई ले लें जिसमें एंटीजन ही ना हो तो किसी को ब्लड दे दें, क्योंकि वो तो रिएक्टिव एंटीजन करता है। ऐसे ब्लड ग्रुप को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। नीचे दिया हुआ मैंने यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? O ब्लड ग्रुप है, क्योंकि उसमें एंटीजन नहीं होता।
यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन सा है? जिसमें एंटीबॉडी नहीं होती। तो जब दोनों एंटीजन है ए और बी, तो एंटीबॉडी कहाँ से होगी? दोनों में से कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। दैट इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। लास्ट पॉइंट इसका ब्लड ग्रुप, RH ब्लड ग्रुप। RH ब्लड ग्रुप रेसस मंकी में डिस्कवर हुआ था, जिसे आप हनुमान मंकी बोलते हैं, मकाका मुलेटा, इसलिए नाम उसका RH ब्लड ग्रुप है। RH ब्लड ग्रुप में भी 3 एलील होते हैं C, D, लेकिन D एक ही प्रोमिनेंट है, उसी को हम कंसीडर करते हैं। RH पॉजिटिव लोग इंडिया में करीब 96% है, RH नेगेटिव हार्डली 4% है। एंटीजन, इसमें भी RBC पे प्रेजेंट होता है। RH एंटीजन, एंटीबॉडीज प्लाज्मा में होती हैं, लेकिन नेचुरल एंटीबॉडीज नहीं होती। एक बार अगर गलती से RH एंटीजन दे दिया जाए नेगेटिव पर्सन को, तो एंटीबॉडीज बन सकती हैं, शुरू से नहीं होती। इसमें जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो आता है कि कौन सा नॉन कंपेटेबल मैच है जिसमें चाइल्ड में प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो है अगर फादर RH पॉजिटिव हो और मदर RH नेगेटिव हो। उस केस में जो है चाइल्ड अगर RH पॉजिटिव हुआ तो चाइल्ड में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस की प्रॉब्लम हो सकती है, येलो बेबी सिंड्रोम हो सकता है। उसमें RBC रप्चर कर जाएंगी। रीजन क्या है, क्यों रप्चर कर जाती हैं, उसको मैंने लास्ट में एक सिर्फ सेंटेंस भी छोटा बनाया है मैंने, एंटीबॉडीज पास थ्रू प्लेसेंटा। एंटीबॉडीज जो हैं इसकी RH की एंटीबॉडीज प्लेसेंटा से पास हो जाती हैं, इसलिए फीटस को अफेक्ट करती हैं। ABO सिस्टम की एंटीबॉडीज नहीं पास हो सकती प्लेसेंटा से। ABO सिस्टम में मदर का मान लीजिए B ब्लड ग्रुप है, चाइल्ड का A है, वहां ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाइल्ड विल बी परफेक्टली ओके। या मदर का A है, चाइल्ड का O है ब्लड ग्रुप, बहुत ही डिफरेंट है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ऐसा RH में हो गया कि चाइल्ड RH पॉजिटिव है और मदर RH नेगेटिव है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उस केस में एंटीबॉडीज जो मदर में होगी वो चाइल्ड के अंदर पास हो जाएंगी और चाइल्ड का जो RBC है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, मैं 1 मिनट का रेस्ट लेता हूँ, आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन को 30 सेकंड के हिसाब से सॉल्व करेंगे। टोटल 3 क्वेश्चंस हैं, 1.5 मिनट का टाइम लीजिए, मैं पानी पीता हूँ तब तक, I'll take a sip of water, और तब तक आप इसे कंप्लीट करके मुझे बताइए जल्दी से कौन से आंसर हैं, आप नोट कर लें। 1 मिनट बाद या 2 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट के बाद मैं आपको बताता हूँ कौन से आंसर ठीक है। Okay, time over. This is a person with blood group AB is considered universal recipient. क्यों बोलते हैं universal recipient? अभी आपने पढ़ा, universal recipient means वो होता है जिसमें दोनों एंटीजन हो, एंटीबॉडीज ना हो। तो कौन सा आंसर होगा? बोथ A and B एंटीजन इन प्लाज्मा बट नो एंटीबॉडीज। दूसरा देखिए, ए मैन विद ब्लड ग्रुप A मैरीज ए वुमेन विद ब्लड ग्रुप B, ऑफस्प्रिंग में कौन सा होगा? अगर एक का A है एक का B है, आप ध्यान मान के चलिए, आप दोनों को आप हेट्रोजाइगस कंसीडर करेंगे, A वाले को भी B वाले को भी, दोनों हेट्रोजाइगस हैं। चाइल्ड में कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, A भी हो सकता है, AB भी हो सकता है, B भी हो सकता है, O भी हो सकता है। आंसर इज थर्ड क्वेश्चन में देखिए, जीन शोइंग कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस वाले जीन में क्या खास बात होती है? एलील्स टाइटली लिंक होते हैं, बेकार आंसर है। एलील दैट आर रिसेसिव, यूजलेस। बोथ एलील्स इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस, यूजलेस। वन एलील डोमिनेंट ऑन द अदर, क्या होगा इसमें कोडोमिनेंस में? बोथ एलील एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली इन हेट्रोजाइगोट। हेट्रोजाइगोट मींस ए बी अगर इंडिविजुअल है तो उसमें ए भी रिप्रेजेंट होगा, बी भी। आंसर इज थर्ड। वन एलील डोमिनेंट जो है वो उसमें होता है जहां कंप्लीट डोमिनेंस हो, यहाँ कोडोमिनेंस है, इसका मतलब एलील दोनों रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 2017 का है, क्वेश्चन है, मैं साथ साथ पढ़ता हूं, आप देखिए आप कौन सा आंसर आपको ठीक लग रहा है। हस्बैंड का और वाइफ का दोनों का दिया हुआ है, ए बी है, हस्बैंड का मीन्स ए बी ब्लड ग्रुप है और उसका ए ओ ब्लड ग्रुप है वाइफ का। उस केस में कौन कौन से ब्लड ग्रुप होंगे? 3 टाइप के हो सकते हैं, ओ नहीं हो सकता। फिनोटाइप 3 हो सकते हैं, 3 फिनोटाइप इन 2 चॉइस में दिए हुए, फर्स्ट में और थर्ड में 3 फिनोटाइप। जीनोटाइप का नंबर 4 हो सकता है क्योंकि इसमें ए भी हो सकता है और ए ओ भी हो सकता है। फिनोटाइप का नंबर 1 ज्यादा होगा जीनोटाइप का नंबर फिनोटाइप से। आंसर इज थर्ड।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। देखिए डोमिनेंस, अब आप कहेंगे ब्लड ग्रुप में कोडोमिनेंस होता है, ऑफ कोर्स होता है, लेकिन अगर ब्लड ग्रुप ए ओ है तो ए डोमिनेंट है ओ पर, इसलिए डोमिनेंस भी सही है। कंप्लीट डोमिनेंस नहीं हो सकता, वो गलत है आंसर। कोडोमिनेंस बिल्कुल सही है, मल्टीपल एलील बिल्कुल सही है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो नहीं सकता ब्लड ग्रुप में, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो नहीं सकता। तो आंसर या तो कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील होगा, या आंसर होगा ए बी सी तीनों। चॉइस देखते हैं, तीनों में, चारों में 3 चॉइस दी हुई है। आंसर इज ए बी सी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड, कौन सा गलत मैच किया हुआ है? स्टार सिंथेसिस इन पी इज मल्टीपल एलील, अभी मैंने बताया था जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाले होते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस स्टार्च की एग्जांपल है। स्टार्च में लार्ज ग्रेन्स भी हो सकते हैं, मीडियम भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं। और जब 3 टाइप के, जैसे रेड फ्लावर भी है, पिंक भी है और वाइट भी है, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, वो मल्टीपल एलील से नहीं होता। ये गलत है आंसर, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट आंसर दिया हुआ है, गलत है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हार्डी वीनबर्ग का। हार्डी वीनबर्ग का भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, मैं थोड़ा हो सकता है आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए। हार्डी वीनबर्ग में देखते हैं। हार्डी वीनबर्ग का है जीन फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी अगर पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में है तो वो कांस्टेंट रहेगी। इस पे डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं और आपको लगेगा कि वो डिफिकल्ट है नहीं अगर एक बार आपको ये फंडामेंटल क्लियर हो जाए इसके। इसमें आप चीज़ ध्यान रखिए, जो डोमिनेंट एलील है, जैसे आप पाइसम सटाइवा में कैपिटल टी यूज करते हैं, वो डोमिनेंट एलील को उसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो रिसेसिव एलील है उसे हम टी से रिप्रेजेंट, इसको स्मॉल टी को उसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ भी टर्म हम पी और क्यू यूज करते हैं। और जीन फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है पी प्लस क्यू इक्वल टू 1। एलिलिक फ्रीक्वेंसी का फार्मूला फिक्स फार्मूला है, आप ध्यान रखिए। अगर 0.8 अगर इसकी वैल्यू है पी की, डोमिनेंट एलील की, इसकी 0.2 होगी, टोटल 1 ही रहेगा हमेशा। ये 80% है, 20% होगा, ये 60% है, 40% होगा। आपको जरूरत नहीं है ज़्यादा उसके लिए कैलकुलेट करने की। जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी वो भी कांस्टेंट रहती है हार्डी वीनबर्ग के लॉ के हिसाब से। जीनोटाइप में जो कैपिटल टी जिसे आप होमोजाइगस डोमिनेंट बोलते हैं, कि उसको स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट मीन्स पी स्क्वायर से। तो इस p प्लस क्यू का ये p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर जो क्या है वो उसका बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो ये जीनोटाइप के लिए p स्क्वायर मीन्स pp, दैट मीन्स होमोजाइगस डोमिनेंट, 2pq मीन्स होमोजाइगस रिसेसिव, q स्क्वायर मीन्स स्मॉल t वो q स्क्वायर है। ठीक है, उससे आप निकालेंगे, फार्मूला है 1। ध्यान रखिए पॉपुलेशन को इक्विलिब्रियम में कब कहते हैं, इसी का पॉइंट देखिए। इसमें स्टार्टिंग में दिया था पॉपुलेशन इज एट इक्विलिब्रियम देन जीन फ्रीक्वेंसी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट। ये फार्मूला था, रूल था इसका। पॉपुलेशन को इक्विलिब्रियम में कब कहेंगे हम? जब कोई म्यूटेशन ना हो, कोई नेचुरल सिलेक्शन ना हो, कोई आर्टिफिशियल सिलेक्शन ना हो, कोई सेलेक्टिव मेटिंग ना हो, कोई जीन फ्लो ना हो, कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो, कुछ भी ना हो। म्यूटेशन, आप समझते हैं म्यूटेशन से जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। कोविड में इतने सारे म्यूटेशन हो रहे हैं। नेचुरल सिलेक्शन से जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, बिस्टन बैक्टीरिया में आप पढ़ चुके हैं। आर्टिफिशियल सिलेक्शन से आप सेलेक्टिव इंडिविजुअल को ब्रीड कराएंगे, उसमें जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। जीन फ्लो में अगर इंडिविजुअल माइग्रेट कर जाए तो चेंज हो जाएगी। जेनेटिक ड्रिफ्ट में भी चेंज हो जाएगी। जेनेटिक ड्रिफ्ट मीन्स रैंडम चेंज। कोई मान लीजिए किसी पॉपुलेशन में आग लग जाए, जैसे जो है वो ब्राज़ील में लगी हुई आग, बहुत सारे प्लांट जो हैं वो नेचुरल सिलेक्शन से नहीं ख़त्म हो रहे, वो जो हैं उससे ख़त्म हो रहे हैं फायर से। ऐसे ही मान लीजिए अर्थक्वेक आ जाए, वॉल्केनिक इरप्शन हो जाए, उससे जो इतनी भी चेंजेस आती हैं जीन फ्रीक्वेंसी में, उसे जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो ये सब जो है उससे कभी भी जो है वो पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, रैंडम अगर मीटिंग हो रही है तो पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में रहेगी। लास्ट में पॉइंट देखिए, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं होगी तो इवोल्यूशन नहीं होगा। इवोल्यूशन नहीं होगा ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता नेचर में। इसका मतलब अगर हार्डी वीनबर्ग की इक्वेशन में चेंजेस आ रही हैं तो या तो इसका मतलब उस स्पीसीज में म्यूटेशन हो रहे हैं, या नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, या कोई ड्रिफ्ट हो रहा होगा, तभी ये पॉसिबल है। क्वेश्चन करेंगे आप, मैं फिर 1 मिनट का गैप लूंगा, क्वेश्चन कीजिए। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन माने जाते हैं और आप देखिए क्वेश्चन डिफिकल्ट है या नहीं है।
4 क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम 1.5 मिनट का टाइम है, आप कीजिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे करने हैं। जल्दी से देखिए आप क्वेश्चंस कैसे कैसे होंगे। मोबाइल पे आप चाहें तो लैंडस्केप में कर लें, मोबाइल पे पढ़ने में आपको आसानी होगी, थोड़ा सा फास्ट पढ़ें। मैंने क्वेश्चन को बोल्ड कर दिया है वैसे, बट आप जल्दी पढ़ें। हाँ जी, आई एम सॉरी, मैंने 2 मिनट नहीं होने दिए, बट बेयर विद मी। टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम, 2013 का नीट का क्वेश्चन है। वो डिस्टर्ब किससे हो सकती है? अगर माइग्रेशन लैकिंग है, नहीं उससे नहीं होती, उससे इक्विलिब्रियम में रहेगी। रैंडम मेटिंग है तो भी इक्विलिब्रियम में रहेगी। लैक ऑफ म्यूटेशन है तो भी इक्विलिब्रियम में रहेगी। लैक ऑफ रैंडम मेटिंग, हाँ रैंडम मेटिंग आप नहीं कर रहे तो उस केस में हो जाएगी। मीन सेलेक्टिव मेटिंग करें तो इक्विलिब्रियम में डिस्टर्ब हो जाएगी। 4th आंसर है। पॉपुलेशन 1000 इंडिविजुअल, ये देखिए डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन आप इसे 30 सेकंड से भी पहले कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ तरीका कैसे करते हैं। नीट 2014 का क्वेश्चन है। 1000 पॉपुलेशन इंडिविजुअल की है, उसमें 360 इंडिविजुअल जो है कैपिटल ए है, दैट मीन्स पी स्क्वायर। 480 इंडिविजुअल्स हैं, वो कौन से हैं? पी क्यू वाले हैं। और 160 इंडिविजुअल जो हैं वो होमोजाइगस रिसेसिव है, मीन्स क्यू स्क्वायर वाले हैं। पूछा क्या गया है? ए की वैल्यू बताइए, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मीन्स स्मॉल पी की वैल्यू आपको बतानी है। कितना आसान है, आप देखिए क्वेश्चन को। आप इनको मत कैलकुलेट कीजिए 480 और ये सब 160, जरूरत ही नहीं है। आप देखिए 1000 इंडिविजुअल हैं, आप 0 हटा दीजिए, 100 कर दीजिए। 360 हैं, पी स्क्वायर को भी आप 0 हटा दिए, 36 कर दिया। 100 में से 36 है, 0.36 आ गया 1 में से। 0.36 पी स्क्वायर की वैल्यू होगी, पी की कितनी होगी? 0.6। दैट्स इट, 0.6 आंसर है। हार्डी-वीनबर्ग इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी हेट्रोजाइगस की कैसे रिप्रेजेंट की जाती है? 2016 का क्वेश्चन है। 2pq से रिप्रेजेंट करते हैं। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल pq होते हैं, लेकिन रिप्रेजेंट हम 2pq से करते हैं। फार्मूले में है p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। A gene locus has 2 alleles, a and small a. If the frequency of dominant allele is 0.4, रिसेसिव की कितनी होगी? डोमिनेंट की 0.4 है, रिसेसिव की 0.6 हो जाएगी। तो 0.4 से जो होमोजाइगस डोमिनेंट है कितने हो जाएंगे? 0.16, 4 4 जा 16। वो 0.6 है, उससे कितने हो जाएंगे? 6 6 जा 36। तो 16 और 36, 16 और 36 दो में चॉइस दी हुई है, होमोजाइगस 16 और लास्ट 36। अब देखते हैं बीच में कितने आएंगे। तो 0.4 है, दूसरा 0.6 है, मल्टीप्लाई कीजिए, 6 4 जा 24, और उसे क्योंकि 2pq होता है 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 48। आंसर इज 3rd। सिंपल, इट्स नॉट मोर देन 30 सेकंड क्वेश्चन। डिपेंड करता है आप अप्रोच क्या है आपकी क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब इम्यूनिटी क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मैं टॉपिक इसको नहीं ले रहा हूँ, जबकि इम्यूनिटी से क्वेश्चन बहुत हैं, लेकिन फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं करूँगा। लास्ट पॉइंट इसमें मैं ले रहा हूँ कोरोना पे कुछ पॉइंट, और फिर मैं आपको दूसरा पार्ट इसका लूँगा। कोरोना में देखिए सब फेमिलियर हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इससे आ सकते हैं, और वो आप शायद मुश्किल होगा आपको करने के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करने हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए डिजीज जो कोविड है, कोविड-19, ये नाम कोविड का क्या है? CO फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस एंड D फॉर डिजीज। 2019 में क्योंकि ये फर्स्ट टाइम अपीयर हुई थी चाइना में, वुहान में, इसलिए 19 लिखते हैं। कोविड-19 डिजीज का नाम है, वायरस का नाम नहीं है। कोरोना वायरस को हम नोवल वायरस बोलते हैं। नेम कोरोना इज बिकॉज ऑफ द स्पाइकी क्राउन। कोरोना लैटिन वर्ड है जो वायरस के सरफेस पे होता है। ठीक है, कोरोना एक पर्टिकुलर वायरस का नाम नहीं है, कोरोना एक फैमिली का नाम है, वायरस की फैमिली है। कॉमन कोल्ड से लेकर के मर्स, सार्स, कोविड, जितने भी आप पढ़ते हैं केसेस, वो सारे कोरोना के केसेस हैं। मर्स भी कोरोना से हुआ था, सार्स भी कोरोना से,
तो और ये कोविड जो अब चल रहा है वो भी कोरोना से है। तो ये पूरी फैमिली है एक उसकी। कोविड जो है वो ओरिजिनेट कहाँ हुआ था? वुहान सिटी में हुआ था। 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं इसमें, जल्दी से आप देखिए कैसे होंगे। कुछ के आंसर आपको पता होंगे, लेकिन मैं उसका लॉजिक भी आपको बताऊंगा क्यों है वो आंसर उसका ठीक, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आपको आता है वही आंसर उसमें आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कोरोना वायरस डिजीज इज एन आउटब्रेक, पेंडेमिक, एंडेमिक, एपिडेमिक। नॉन बायोलॉजी के लोग भी बता देंगे कि क्या है ये, पेंडेमिक है। बट व्हाट द अदर 3 आर? तो पहले एंडेमिक को देखता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एंडेमिक का मतलब होता है किसी एक रीजन में पर्टिकुलरली, उसके अलावा कहीं ना मिले। जैसे एंडेमिक स्पीसीज होते हैं, आप पढ़ते हैं उसमें बायोडाइवर्सिटी में, एंडेमिक स्पीसीज क्वेश्चन भी आ चुका है नीट में। तो एंडेमिक मीन्स विच आर रेस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर एरिया। यहाँ भी एंडेमिक से मतलब है वो बीमारी जो है पर्टिकुलर एक ही एरिया में है। अगर वो उस एरिया में बीमारी बहुत तेजी से फैलनी शुरू हो जाए, आप बोलते हैं आउटब्रेक हो गया बीमारी का, पूरे एरिया में फैल जाए, लार्ज पॉपुलेशन में, आप कहेंगे एपिडेमिक हो गया। जैसे वुहान सिटी में हुआ था, दैट वाज एपिडेमिक, दैट वाज नॉट पेंडेमिक, दैट वाज एपिडेमिक, वुहान में हुआ था। लेकिन अगर उसे पी से आप पासपोर्ट याद रखें, अगर उसे पासपोर्ट मिल गया और वो डिफरेंट कंट्री में पहुंच गया, देन इट विल बिकम पेंडेमिक। सभी कॉन्टिनेंट में या कंट्रीज में पहुंच गया तब उसे पेंडेमिक बोलते हैं। तो अब पेंडेमिक है, आप देख रहे हैं यूरोप में और उसमें सब में है, सो इट इज पेंडेमिक। लेकिन अगर वुहान में बात की जाए तो इट वाज एपिडेमिक, और अगर रेस्ट्रिक्टेड होता है एक एरिया में तो ये एपिडेमिक के बजाय भी एंडेमिक होता। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नोवेल कोरोना वायरस आर करेक्ट? 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आप जल्दी से देखिए, मैं आपको लिए रीड करते हूँ फास्ट। हेरिटी मटेरियल इसमें सिंगल स्ट्रैंड होता है और वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का होता है। दूसरा, इसका दूसरा नाम है सार्स कोविड। तीसरा, मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड ऑर्गन इसमें जो है वो लंग्स है। चौथा, इस डिजीज इज वेक्टर बोर्न। बताइए इनमें से कितने स्टेटमेंट ठीक हैं? सोचिए, क्विक, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं। आंसर देखिए क्या है। हेरिटी मटेरियल आरएनए होता है, सही है। सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सही है। उसका भी एक स्ट्रैंड होता है, ये भी सही है। HIV जो वायरस है एड्स का, उसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं, लेकिन वो भी सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, लेकिन 2 होते हैं। इसमें एक ही स्ट्रैंड होता है और न्यूक्लियोटाइड का नंबर बहुत ज्यादा है, 3000 के करीब है। HIV में सिर्फ 1000 होते हैं, तो काफी बड़ा वायरस है उस हिसाब से, मतलब हेरिटी मटेरियल बहुत बड़ा है। इट इज आल्सो नोन एज सार्स कोविड। ये ठीक है? गलत है ये आंसर। सार्स कोविड 2 है इसका नाम। सार्स कोविड तो सार्स वाले वायरस का नाम है, ये ऊपर जो सार्स लिखा हुआ है मैंने, उसका नाम है। तो सार्स कोविड या सार्स कोविड 1 ये सार्स वाले वायरस का नाम था। सार्स कोविड 2 ये इसका कोविड 2 का नाम है, सॉरी कोविड का नाम है, कोविड-19 का। हाँ जी। उसके बाद देखिए, मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गन्स लंग्स, सही है। लंग्स सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, निमोनिया और सिम्टम वैसे डेवलप हो जाते हैं। वेक्टर बॉर्न है, बिल्कुल नहीं होता। वेक्टर बॉर्न नहीं है, मॉस्किटो बाइट से नहीं होता है। मलेरिया नहीं है, ये एलिफेंटिएसिस नहीं है जो क्यूलेक्स से ट्रांसफर होगा, या मलेरिया एनाफ्लीज से ट्रांसफर होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन और हैं। इसमें कुछ टर्म मैंने नई दी हैं जिससे कि आपको पता रहे, अगर क्वेश्चन आए तो आपको उसके लिए प्रिपेयर हो, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन कुछ ना कुछ जरूर आएंगे साथ में, क्योंकि एम्स वगैरह के भी एग्जाम इसी के अंदर मर्ज हुआ है, जिपमर भी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज जूनोटिक डिजीज? जूनोटिक, जूनोटिक डिजीज को हम जूनोसिस बोलते हैं। जूनोटिक डिजीज कौन सी होती है? ये वो डिजीज है जो किसी एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हुई है। एंथ्रेक्स शीप से ट्रांसफर हुआ था ह्यूमन में। बर्ड्स फ्लू बर्ड से ट्रांसफर हुआ था फीकल मैटर के थ्रू ह्यूमन में। कोरोना वायरस बैट या आंटीटर जो भी है, पेंगोलिन है या सिवेट है, उससे ट्रांसफर हुआ है ह्यूमन में। तीनों ही जूनोटिक है। आंसर इज ऑल ऑफ दिस। ठीक है, सार्स भी जूनोटिक है। AS2, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया है मैंने। AS2 वो मेम्ब्रेन प्रोटीन है ह्यूमन सेल में, जिससे वो बाइंड करता है वायरस, उसकी स्पाइक प्रोटीन बाइंड करती है और उसकी वजह से वो ह्यूमन में एंट्री ले लेता है। और जो मैंने नाम नीचे दिए हैं उनमें से एक ऐसा है जो टेस्टिस में, जो उसकी लेडी की सेल है उसमें सबसे ज्यादा होता है, और इसलिए शायद मेल्स में
बहुत जल्दी वायरस का इन्फेक्शन होता है और मेल्स में डेथ भी ज़्यादा होती है, फीमेल में कम हो पाती है, क्योंकि वो टेस्टिस में सबसे ज़्यादा उसके रिसेप्टर्स हैं जहाँ वो बाइंड करेगा। दिस ACE2 फुल फॉर्म इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2, दैट इज द करेक्ट आंसर। बाकी तो मैंने सब नाम लिखे हैं कुछ भी, एक में कोविड का नाम लिख दिया, एक में एपिटोम वर्ड यूज कर दिया, एक में एस्टरेज यूज कर दिया, जस्ट फॉर एस को स्पेलिंग के हिसाब से। अदरवाइज आंसर इज एंजियोटेंसिन। ये आपने पढ़ा है एल्डोस्टेरोन सिस्टम में, रास में, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, वहाँ एंजियोटेंसिन आप पढ़ते हैं जो बीपी बढ़ाता है ब्लड का, तो ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है वो एंजियोटेंसिन है। तो ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंजाइम है जिससे ACE2 जो है, ये प्रोटीन जो है, ये उससे बाइंड कर जाता है और उससे सेल में एंट्री से मिल जाती है। ठीक है, हाँ जी। अब मैं टॉपिक के नाम ले रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा 2 ही पॉइंट बचे हैं, ज़्यादा है नहीं, तो अब आप बीच में 1 आध मिनट रिलैक्स कर सकते हैं। टॉपिक जो 12th के हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एवरेज क्वेश्चन 4 to 6, सिर्फ टॉप 5 टॉपिक अगर आप ले लें, इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन हेल्थ, सिर्फ ये आप टॉपिक ले लें। ह्यूमन हेल्थ में भी सिर्फ इम्यूनिटी आप पढ़ लें तो इम्यूनिटी में से 50% क्वेश्चन, अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो 2 या 3 क्वेश्चन सिर्फ इम्यूनिटी के होंगे। तो ये 5 चैप्टर्स आप कर लें तो 30 क्वेश्चन करीब, 25 और 30 क्वेश्चंस आप सिर्फ इन चैप्टर से कर लेंगे। तो ये सिर्फ मैंने इसलिए आपको दिया है कि आपको ये पता हो। 11th में कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एनिमल किंगडम में अभी बता रहा था आपको, इसके अलावा एनाटमी है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है और मॉर्फोलॉजी, फ्लावरिंग प्लांट है, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिजियोलॉजी से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, 1 और 2 क्वेश्चन हैं हर एक जो उसमें आते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये 3rd लास्ट पॉइंट है उसका, टिप्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पीड एंड स्कोर। चाहे आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो या एग्जाम में प्रैक्टिस कर रहे हो, कैसे स्पीड को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। बायोलॉजी में स्पीड बहुत काउंट करती है। अगर बायोलॉजी में आपने आप एक तो चीज़ समझ लीजिए, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री में हो या बायोलॉजी में हो, क्वेश्चन इजी है उसके भी 4 नंबर आते हैं, क्वेश्चन मुश्किल है उसके भी 4 मार्क्स हैं। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, किसी भी स्टबबाउंड क्वेश्चन पे, किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन पे अटक जाएंगे। वो सब आपको नहीं करना है, आपको जो इजी क्वेश्चन है वो आप करें पहले। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लॉक अपना सेट कर लें। सेट करने से क्या मतलब है, आपका एग्जाम 2 to 5 o'clock है, मैंने एग्जाम का टाइम लिख दिया 2 to 5 o'clock। कम से कम 21 डेज का आप सेट कर लें बायोलॉजिकल क्लॉक, बॉडी को आप आदत डाल लें। 2 o'clock पे आप बैठें डेली पढ़ने के लिए, या कोई क्वेश्चन पेपर आपको करना है, और 5 o'clock से पहले आप ना उठें, बीच में पानी का सिप ले लें, अदरवाइज ना उठें आप। 3 घंटे रेगुलर 21 डेज के बाद, आप मान के चलिए 3 वीक्स के बाद आपकी बॉडी यूज टू होगी, बेस्ट कंसंट्रेशन आपकी 2 to 5 में होगी। एंड दैट इज व्हाट आई वांट, क्योंकि जब तक आप वहां पे कंसंट्रेशन आपकी नहीं होगी, फोकस नहीं होंगे, आप नहीं कर पाएंगे। दूसरा, स्लीपिंग हैबिट। 7 आवर्स की स्लीप बहुत ज़रूरी है, 6 और 7 आवर्स। जो लोग प्राणायाम करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, वो कम ले सकते हैं स्लीप, लेकिन अदरवाइज 6-7 आवर्स की। और प्रीवियस नाइट पे भी ज़रूरी है, जिस दिन आपका एग्जाम है 26 को, 25 की नाइट जो है पूरी स्लीप लीजिए। वैसे मुश्किल है ये एज्यूम करना कि आपका एग्जाम हो गया, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही सो जाइए जैसे आपका एग्जाम हो गया है। कोशिश कीजिए, एंग्जाइटी लेवल को कम कीजिए, हाइड्रेट पूरा रखिए अपने आप को। किस सब्जेक्ट से शुरू करना है एग्जाम में, सब्जेक्ट के लिए कोई बायस होके नहीं जाएंगे आप। कुछ लोग सोचते हैं कि फिजिक्स से शुरू करें, बाद में न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। नहीं, फिजिक्स से आप शुरू करना चाहते हैं, फिजिक्स वहाँ मुश्किल है पेपर, शुरू के 5 मिनट में आप चेक कर लीजिए कौन सा पेपर मुश्किल है, उसको मत कीजिए स्टार्ट। जो आसान है वहाँ से कीजिए, जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बूस्टअप होगा कॉन्फिडेंस। वेटेज हर एक क्वेश्चन का भी मैं बता रहा था कि इजी डिफिकल्ट का बराबर है, तो इजी क्वेश्चन ज़्यादा कर लीजिए पहले राउंड में, जितने भी इजी और एवरेज हैं। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है, उनको बाद में देख लेंगे। ठीक है, डोंट जंप टू ऑप्शंस, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी मैंने एग्जांपल दी थी आपको, कभी कभी क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़ते नहीं है, सिली मिस्टेक करते हैं, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। यू कांट अफोर्ड सिली मिस्टेक्स, कि आपने आंसर फिल करना था 2 में 3 में कर दिया आपने। कभी कभी क्वेश्चन जो है वो 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 आंसर ठीक है उसमें से, और ऑप्शन 2 जो है वो 3 पे लिखा हुआ है, ऑप्शन 3 पे लिखा हुआ 2, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। एलिमिनेशन का रिस्क कितना ले सकते हैं आप? रिस्क तब ले सकते हैं जब आपको श्योर शॉट पता है कि 2 में से आंसर ठीक नहीं हो सकते। अगर आपको चारों आंसर नहीं पता, 75% चांसेस है गलत होने के, 25% चांसेस हैं ठीक होने के। अगर आप 2 एलिमिनेट करते हैं, आप श्योर शॉट है, 50% चांसेस ठीक होने के हो जाएंगे, गलत होने के 1/4 है, मतलब -1/4 है। आप क्वेश्चन में रिस्क ले सकते हैं, 2 क्वेश्चन में से एक भी ठीक हो जाएगा तो आपको बेनिफिट रहेगा उसका, ले सकते हैं इतना रिस्क।
लुक इफ रॉन्ग और इनकरेक्ट आंसर इज डिमांडेड। कभी कभी क्या होता है उनसे पूछा जाता है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पे पहले आप सर्कल कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन में ऑप्शन पढ़ने शुरू कीजिए, अदरवाइज ये भूल जाते हैं कि आप इनकरेक्ट पूछा था और आप करेक्ट ढूंढ करके आप आंसर टिक कर देते हैं। रेस्पॉन्स मार्क करने के लिए आप ध्यान रखिए, जब सर्कल आपको डार्कन करने हैं हर पेपर के बाद आप करें, एक एक क्वेश्चन के बाद आप करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, हर बार आपका वो मेंटल स्टेट भी चेंज हो जाती है। तो आप रिस्पॉन्स जो है, एक पेपर आपने कर लिया, मान लीजिए बायोलॉजी कर लिया, बायोलॉजी 90 क्वेश्चंस का है, बायोलॉजी आपने कर लिया, अब बायोलॉजी के क्वेश्चन सबके आंसर आप मार्क कर लीजिए जितने आपने किए। उसके बाद आपने केमिस्ट्री किया, फिर केमिस्ट्री के पहले मार्क कर लिए। ये नहीं कि आप चारों पेपर कर लें और फिर उनके आंसर मार्क करने शुरू करें, कभी कभी क्या होता है बाद में टाइम नहीं बचता, आपके आंसर किए हुए बहुत अच्छे और आप उस पर ट्रांसफर नहीं कर पाते। ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें, हर पेपर को, एक पेपर भी आप करें तो उसे पहले ट्रांसफर कर लें उसके आंसर। ऐसे ही आप केमिस्ट्री में कर लें, बाद में फिजिक्स में आप ऐसा भी कर सकते हैं, 20 क्वेश्चन हो जाए, 20 के बाद आप ट्रांसफर कर लीजिए 20 के आंसर, जिससे कि आप पास आंसर शीट जो है वो अप टू डेट हो। जैसे ही वो एग्जामिनर जो आपसे ले, जो भी वहाँ पे इन्विजिलेटर है, तो आप उसे आंसर शीट दे सकें किसी भी मोमेंट पे। कीप हाइड्रेटेड, लॉस वो जो है स्ट्रेस नहीं आपको ज़्यादा होना चाहिए। और कोई क्वेश्चन बहुत मुश्किल आ जाता है तो मैंने देखा जनरली स्टूडेंट पैनिक में आ जाते हैं, पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वो मुश्किल आपके लिए है तो बाकियों के लिए भी मुश्किल होगा वो, तो चिल डाउन, उसमें ऐसा कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस सम अप कर देता हूँ मैं, 1 मिनट का काम और है। स्टडी, मेमोराइज, रिवाइज, वही पॉइंट है। अपने आप को मोटिवेटेड रखें, अपने आप को कंपेयर ना करें। बहुत सारे बच्चे जो हैं उनमें नेगेटिविटी आ जाती है, अपने आप को लो फील करने लगते हैं, दूसरा ज़्यादा इंटेलिजेंट नज़र आता है, नहीं हमेशा ऐसा होता है, दूसरा किसी न किसी पॉइंट में आपसे ज़्यादा होशियार होगा, लेकिन आप में बहुत सारे फीचर्स होंगे, हो सकता है आपने बहुत अच्छे तरीके से बायोलॉजी की हुई हो, आप उससे ज़्यादा मार्क्स फैच कर सकें। IQ मैटर नहीं करती, ज़्यादातर एवरेज बच्चे हैं जो टॉप रैंकिंग पे आते हैं, बट दे डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स। तो ऑप्टिमिस्टिक रहें लास्ट में, ठीक है। This I complete. This is all for webinar. So you have already taken the first step. Along this journey, if you need any help, you can write me and do not hesitate to reach me. I'll always be there with you. And this reminds me, Albert Einstein quote, that all dreams come true if you have the courage to pursue them. So one thing more, that if you are optimistic, if you have a very clear goal and passion, then remember nothing on this planet can stop you. With this, I come to the end. You can write all queries, all doubts and question in chat box if available now. And you can even post your all questions, and you can email me at my email address I have given on this slide, last slide. And now I'm handing over the mic